प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन्स के बारे में। कोलिजन क्या होते हैं? इट इज़ ए शॉर्ट इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज़। अब ये शॉर्ट इंटरेक्शन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकते हैं या फिर उसके बिना भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स, इट इज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Collision between two vehicles on a road, again the vehicles collide physically, contact में आते हैं। Collision between a bullet and a wooden block, यहाँ पर भी objects जो हैं वो contact में आते हैं। Collision between two astronomical bodies, it is through gravitational field. In Rutherford experiment, the path of alpha particle changes due to force of repulsion between the alpha particle and the gold nucleus. Both are positively charged. Force of repulsion, electrostatic repulsion. तो ये भी इंटरेक्शन है, दिस इज ऑल्सो ए कोलिजन। चलिए अब बात करते हैं कि कोलिजन में एक्चुअली होता क्या है। कोलिजन में दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेट अस कंसिडर टू बॉडीज, body 1 and 2. Force exerted by 1 on 2 is written as F12. This is equal to rate of change of momentum of body 1. Let us say कि delta P1 है change in momentum of body 1 और collision last for delta t time, short time. तो ये हो गया F12. F21 force on 2 by 1. This will be equal to change in momentum of body 2 divided by time. Rate of change of momentum of body 2. Change in momentum of body 2. अब अगर इनको ऐड करें जैसा कि हमने पहले भी किया था, दिस इज इक्वल टू डेल्टा P1 वेक्टर ओवर डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 वेक्टर ओवर डेल्टा T। डेल्टा T को इधर लिख लें, change in momentum of A plus change in momentum of body B. According to Newton's third law of motion, this is equal to 0. So, there is no change in momentum. Total change in momentum is 0. Means total momentum remains conserved. So, in all collisions, total momentum remains अब टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म ज़रूर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हीट प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, बट द टोटल एनर्जी remains conserved. Total momentum and total energy remain conserved in all collisions. चलिए अब बात करते हैं कि collisions कितनी तरह के होते हैं, types of collisions. Say for example, आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को आपने इस हाइट से नीचे फेंका
और बॉल वापस अगर इसी हाइट पर आ जाती है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स कंजर्व्ड। इन दिस केस द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को कैसे शो कर सकते हैं? ये ग्राउंड लेवल, ये बॉल आप शो करते हैं, इट गोज टू द सेम हाइट, again rebounds, again goes to the same height. So this collision is perfectly elastic. Means a perfectly elastic collision is that collision in which the kinetic energy is conserved. अब दूसरी तरह की collision होती है, दरअसल इन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, बड़ी बॉडीज में नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। बॉल उसी हाइट तक वापस नहीं आती है, नॉर्मली कम हाइट तक आती है। सो कोलिजन्स आर जनरली इन इलास्टिक। कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स is considered to be approximately perfectly elastic. Otherwise the collisions are inelastic. Inelastic कौन से होते हैं? Those collisions in which the kinetic energy is not conserved. आप कैसे दिखाएंगे उनको? अब ये बॉल आपने ली इस हाइट से और बॉल जो है वो it does not attain the same height. This is inelastic. Inelastic collision. अब कुछ collisions होते हैं जिनमें कि the body sticks to the, for example आप लेते हैं डो, गूंधा हुआ आटा लेते हैं या गीली मिट्टी लेते हैं, दीवार के ऊपर जब आप फेंकते हैं, सपोज वो स्टिक कर गई। If the bodies stick together and after collision they move as a single body, then the collision is said to be perfectly inelastic. So ऐसे आप दिखा सकते हैं। Means that collision in which the kinetic energy is totally lost or totally transferred to the other body. That collision is perfectly inelastic. एक और तरह की क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम क्लासिफाई करते हैं collisions को as head-on collision and non-head-on collisions. Head-on collision is that collision in which the colliding bodies keep on moving along the same straight line before and after collision. जैसे कि यहाँ दिखाया है A और B दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ कोलाइड के और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नॉन हेड ऑन कोलिजन कौन सी होती है? इन विच the bodies do not move along the same straight line. After the collision they start moving along different directions. तो वो हुई non head on collisions. Head on collision को हम one dimensional collision भी कहते हैं। और नॉन हेड ऑन कोलिजन को, क्योंकि वो प्लेन में होती है, तो उसको कहते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट हेड ऑन कोलिजन। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, ये दिखाई है। हम पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन प्लस द कोलिजन इज इलास्टिक ऑल्सो।
हेड ऑन इलास्टिक कोलिशन। वेल, हमने कहा कि दो बॉडीज कंसिडर की A एंड B। लेट M1 इज मास ऑफ बॉडी A, M2 इज मास ऑफ बॉडी B। ये दिखाया। अब बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन क्या होता है कि ड्यूरिंग कोलिशन बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाते हैं, उससे मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहता है। लेट अस से कि u1 इज वेलोसिटी ऑफ A, u2 is velocity of B. After collision, let us say v1 is velocity of A, v2 is velocity of B. अभी हमने प्रूव किया कि in all collisions the momentum remains, total momentum remains constant। तो चलिए टोटल मोमेंटम लिखते हैं बिफोर कोलिजन। मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1, और बॉडी B का m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ से हम इस टर्म में से और इसमें से m1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा u1 और ये टर्म इधर आएगी विद माइनस साइन। इसी तरह से ये टर्म और ये टर्म, इनमें से हम m2 कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म इसी तरफ है और ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस u2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। हमने कहा कि ये कोलिशन इलास्टिक भी है। बिकॉज द कोलिशन इज इलास्टिक देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलिए लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर बॉडी A की और हाफ m2 u2 स्क्वायर बॉडी B की। आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जीज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह से 1/2 सारे में से कॉमन आ जाएगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से m1 कॉमन ले लेते हैं u1 स्क्वायर और ये टर्म इधर आएगी विद नेगेटिव साइन इक्वल टू, अब इस टर्म में से m2 v2 स्क्वायर माइनस ये टर्म इधर जाएगी विद नेगेटिव साइन u2 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब इस इक्वेशन को लिख लें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशंस 1 और 2 को डिवाइड कर दें। यहाँ क्या हो जाएगा, m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा, v2 माइनस u2 भी कट जाएगा। तो ये बच गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। v2 प्लस u2 को हम इधर लिख लेते हैं। v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2।
u1 minus u2 is relative velocity of approach of two bodies before collision, and v2 minus v1 is relative velocity of separation of two bodies after collision. इन दोनों को डिवाइड करके देखें ज़रा, ये इधर लाके v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2, ये आ जाता है 1, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ restitution. Coefficient of restitution is 1 for perfectly elastic collision, and if the collision is perfectly inelastic, perfectly inelastic collision में क्या होता है कि bodies after collision they move as a single body, means they move with the same velocity. In that case v2 minus v2 is equal to v1, तो उस केस में E is equal to 0 for perfectly inelastic collision. और inelastic collision के बीच में E lies between 0 and 1. तो चलिए यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ से हम v2 निकाल लेते हैं. v2 is equal to v1 plus u1 minus u2. इस v2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू, हमारा m क्या है, टू फाइंड आउट v1 एंड v2, मीन्स वेलोसिटीज आफ्टर कोलिशन. v2 की जगह v1 प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. अब यहाँ से इन दो टर्म्स में से हम v1 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ गया m1 प्लस m2, v1 कॉमन. अब इन टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, ये ऑलरेडी इधर हैं, ये जाएगी माइनस साइन के साथ m2 u1, ये प्लस साइन के साथ m2 u2. चलिए m1 प्लस m2 इंटू v1 इक्वल टू m2 u2 और m2 u2 दो बार आ गया तो 2m2 u2. ये दो टर्म्स में से हम u1 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचा, दिस विल बी m1 माइनस m2. यहाँ से हमारे पास v1 कितना आ गया, इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू v1 की. इसी तरह से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, इस इक्वेशन में से v1 की वैल्यू निकाल लें और फिर इस इक्वेशन में v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो v2 की वैल्यू आ जाएगी. तो v2 की वैल्यू वैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे,
V1 की जगह V2 लिख लिया, M1 की जगह M2 लिख लिया, M2 की जगह M1 लिख लिया। यहाँ पर भी M1 की जगह M2 और M2 की जगह M1, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू U1 की जगह U2 प्लस 2, M2 की जगह क्या लिखें, M1, U2 की जगह U1 ओवर M1 की जगह M2, M2 की जगह M1, वो यही आ जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू V2 की। चलिए अब हम स्टडी करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। When bodies A and B are of same mass, that is M1 equal to M2, let us say this is equal to M. अब V1 निकाल लेते हैं। V1 is equal to M1 की जगह M लिख दें, M2 की जगह भी M लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा, M प्लस M इंटू U1 प्लस 2 M इंटू U2 डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। V1 कितना आ जाएगा, ये 2M, नीचे भी 2M आ गया, M प्लस M, तो ये कैंसिल हो गया U2। तो हमारे पास V1 कितना आ गया, U2, और V2 कितना आ जाएगा, V2 में M2 माइनस M1, M माइनस M डिवाइडेड बाय M प्लस M इंटू U2 प्लस 2M इंटू U1 डिवाइडेड बाय M प्लस M। अब इस केस में भी M माइनस M ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, और V2 कितना आ जाएगा, 2M और नीचे 2M U1, means that the bodies exchange their velocities if their masses are same। अब ये रिज़ल्ट जो है इसके बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्या किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ज़रूरत होती है स्लो न्यूट्रॉन्स की। सो क्या किया जाता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स are made to collide with the nuclei of hydrogen atoms। न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम की कौन सी होती है, प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो by making the collision of fast moving neutrons with protons, the neutrons are slowed down। मॉडरेटर में इसीलिए हैवी वाटर यूज होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अनदर केस, स्पेशल केस, व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट। लेट अस से कि B इज एट रेस्ट। अब B रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी, U2 is equal to 0, that is U2 is equal to 0। अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटीज V1 और V2। V1 कितना आ जाएगा, V1 is equal to M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस, क्योंकि V2 ज़ीरो है, U2 ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। V1 कितना आ गया, इसके बराबर, और V2 कितना आ गया। अब इसमें ये टर्म नहीं आएगी क्योंकि U2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। तो ये आ जाएंगे वेलोसिटीज। फर्दर 3 केसेस अराइज होते हैं। नंबर 1, व्हेन
if m1 is very very large as compared to m2, so m2 can be neglected, can be taken approximately equal to 0, means body B ये रेस्ट में भी है। अब ये बहुत हैवी है, तो निकालते हैं V1 कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0 डिवाइडेड बाय m1 और इसके साथ u1 मीन्स v1 इज इक्वल टू m1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है u1 मीन्स बॉडी A कंटिन्यूज टू मूव विद वेलोसिटी u1, पहले भी u1 थी अभी भी u1, v2 कितना आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 2 m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1, m2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0, तो ये आ जाएगा 2u1, मतलब कि ये पहले रेस्ट में था, it will start moving with double the velocity of A, so it means अगर एक हैवी चीज़ जो है वो कोलाइड करती है किसी बहुत लाइट चीज़ से जो कि रेस्ट में है, तो A remains undisturbed, उसी वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन B जो है it starts moving with double the velocity of A। अब दूसरे केस में if m2 is very very large as compared to m1, तो m1 को अप्रॉक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, तो v1 कितना आ जाएगा, m1 को 0 लिया, m1 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 इज 0 और नीचे m2 मल्टीप्लाइड विद u1 मीन्स v1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, माइनस u1। तो क्या मतलब हुआ कि अगर ये चीज़ लाइट है, m1 इज़ लाइट, तो ये यहाँ से रीबाउंड होके सेम वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगा। और v2 निकाल लेते हैं, v2 कितना आ जाएगा, 2m1, m1 इज़ 0, सो v2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी भी रेस्ट में है, जैसे कि कोई दीवार हो और ये चीज़, ये बॉल उसको टकरा करके उसी वेलोसिटी से वापस आ जाए। थर्ड केस लेते हैं, लेट अस से कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू लेट अस से m, ये हमने पहले भी लिया है और हमने कहा था कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं दोबारा। अब सेम मास की दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, ये रेस्ट में है और ये मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, बॉडी A will come to rest and this B will move with velocity u1। चलिए अब डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ये दो बॉडीज A एंड B। अब कोलिजन सबसे पहले तो यहाँ भी और यहाँ भी तब होगी व्हेन u1 इज ग्रेटर दैन u2। A की वेलोसिटी u1 और B की वेलोसिटी u2। अब मान लीजिए यहाँ ये कोलाइड करते हैं आफ्टर कोलिजन, जबकि हेड ऑन कोलिजन में ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, तो अब ये बॉडी A मूव्स विद वेलोसिटी v1 मेकिंग एन एंगल θ1 विद x एक्सिस and body B moves with velocity v2 making an angle θ2 with x axis। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन along x axis लिखेंगे और along y axis लिखेंगे। अब इस केस में इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 प्लस मोमेंटम ऑफ दिस m2 u2 और v1 का मोमेंटम इस डायरेक्शन में ये होगा v1 m1 v1 cos θ1। तो हम लिखेंगे m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2।
तो along x axis m1 u1 मोमेंटम ऑफ A प्लस m2 u2 मोमेंटम ऑफ B, और इस तरफ मोमेंटम है m1 v1, इसका कंपोनेंट, मोमेंटम का कंपोनेंट along x axis m1 v1 cos थीटा 1, और इसी तरह से B के मोमेंटम का कंपोनेंट along x axis m2 v2 cos थीटा 2। इसी तरह से along y axis लिख सकते हैं, y axis में बिफोर कोलिजन A का मोमेंटम 0, B का मोमेंटम भी 0, और along y axis A का मोमेंटम m1 v1 sin थीटा 1, और ये मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ m2 v2 sin थीटा 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और क्योंकि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू, इधर काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और हमने कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 4। तो इन तीन इक्वेशन से हम चार पैरामीटर्स को, चार चीज़ों को नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली आउट ऑफ दिस टू, एक्सपेरिमेंटली मान लीजिए कि थीटा 1 निकाल लेते हैं, तो फिर देन वी कैन फाइंड आउट v1 v2 एंड थीटा 2 इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड थीटा 1। तो इस तरह से आप कोलिशंस को समझ सकते हैं। थैंक यू।